Hey, hi everyone. Very good morning to all of you. And today we are going to discuss real analysis previous year questions of 2023 paper. ठीक है, देखो so far 2024 entire questions are done. Entire तो नहीं है, I mean real analysis के सारे covered हैं. Modern algebra all covered, OD all covered एंड ऑल्सो हाँ, तो ये सारे सेक्शंस के मैं करवा चुकी हूँ. एंड स्लोली आई एम अपलोडिंग द अदर सेक्शन प्रीवियस अदर सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल. Similarly, 2023 के ODE questions I have already uploaded on my channel, so you can watch them for free. Also, the batch for 2026 is now live. You can see कि there are 101 lectures already available. I mean live lectures we have conducted. Currently real analysis चल रहा है. Real analysis ये कल का ही session है. And we have already covered calculus is about to get completed. We have covered linear algebra. We have covered ordinary differential equation and vector analysis. So you can join this batch for 2026 and 2027. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. Now this is our question number 1 part C. Part C. Test the convergence of the series. सीरीज़ के कन्वर्जेंस के लिए वी फर्स्ट यूज़ रेशियो टेस्ट, और जहाँ रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा वी विल यूज़ राबीज टेस्ट या फिर लॉगरिथम टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन सिचुएशंस. बट सबसे पहले वी ट्राई रेशियो टेस्ट. और रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि वेन एवर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई यू एन इट कम्स आउट टू बी एल. तो अपने पास तीन ऑप्शंस होते हैं. एल अगर लेस देन वन है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, एल ग्रेटर देन वन है तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, और अगर एल इक्वल टू वन है तो ये टेस्ट फेल हो जाता है. सो वी हैव टू प्रोसीड टू सम अदर टेस्ट. सोल्यूशन. सो व्हाट इज़ द nth टर्म हियर. यहाँ पर जो nth टर्म है यू एन, इट इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन. इनफैक्ट ये सारा ही यू एन है. एक्चुअली जो सीरीज़ होती है ना, जो सीरीज़ होती है हमारे पास वो कुछ इस तरह से लिखी होगी समेशन यू एन. then this is equal to summation 1 into 3 into 5 up to so on 2n minus 1 x to the power 2n plus 1 divided by 2 into 4 into 6 up to so on 2n into 2n plus 1. अगर सिर्फ ये nth टर्म होती तो हमारी सीरीज़ कुछ इस तरह से दिखती 2n plus 1 divided by 2n plus 1. So this entire expression is equal to un. So un is equal to 1 into 3 into 5 up to so on 2n minus 1 into x to the power 2n plus 1 divided by 2 into 4 into 6 up to so on 2n into 2n plus 1. Now we need to find un plus 1. un plus 1 क्या आ जाएगा. So un plus 1 is equal to 1 into 3 into 5 up to so on. This will be 2n plus 1. 2n plus 1 x to the power 2n plus 3 divided by 2 into 4 into 6 up to so on. This is 2n plus 2 and ये आ जाएगा 2n plus 3. हमने कुछ नहीं किया है, we just substituted n plus 1 in place of n. ठीक है. Now limit n tends to infinity un plus 1 divided by un is equal to limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, और ये क्या आ जाएगा इफ़ आई टेक यू एन प्लस वन 1 इंटू 3 इंटू 5. देखो दिस टर्म इज़ 2n प्लस 1. what will be the term before it, right before it. You can see that there is a difference of 2. 1 plus 2 3, 3 plus 2 5. so इससे पहली टर्म क्या होगी 2n प्लस 1 माइनस 2. so इससे पहली टर्म होगी 2n माइनस 1, 2n माइनस 1. और इससे पहली टर्म क्या होगी उसका वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2n माइनस 1 तक टर्म्स हैं. सो वी हैव टू सी what will be the term right before it so that we can cancel out all the required terms. Divided by 2 into 4 into 6 up to so on. Same here, what will be the term right before 2n plus 2. It will be 2n because there is a difference of 2. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6. 2n into 2n plus 2 into 2n plus 3.
ठीक है। नाउ वी हैव टू डिवाइड इट बाई यू एन, सो ये वाला टर्म तो ऊपर चला जाएगा, 2n इंटू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, एंड दिस इज divided by 1 into 3 into 5 up to so on 2n minus 1, 2n minus 1, और यार a x to the power 2n plus 1 है, और यहाँ पर x to the power 2n plus 3 है, 2n plus 3 है. So you can clearly see कि ये 1 3 5 up to 2n minus 1 got cancelled out, 1 3 5 up to 2n minus 1. Here 2 4 6 up to 2n got cancelled out, 2 4 6 up to 2n. So this is limit n tends to infinity. अपने पास यहाँ बचा 2n plus 1, और यहाँ पर भी एक 2n plus 1 बचा हुआ है, सो 2n plus 1 स्क्वेयर बचा, डिवाइडेड बाई नीचे बचा 2n plus 2 इंटू 2n plus 3, 2n plus 2 इंटू 2n plus 3, और x की पावर हियर इट इज़ 2n plus 3, हियर इट इज़ 2n plus 1, सो यहाँ x स्क्वेयर बचा. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. इफ़ आई टेक 4n स्क्वेयर ऊपर से आउट, तो आई हैव 1 plus 1 by 2n होल स्क्वेयर, डिवाइडेड बाई नीचे से आई कैन टेक 2n आउट फ्रॉम हियर, 1 plus 2 by 2n, and I can also take 2n out from here, 1 plus 3 by 2n into x square. 2n 4n square got cancelled out, and हमारे पास क्या बचा? If I put the limit n tends to infinity, then 1 by n tends to 0, and we are left with just x square. So ये series summation un converges if x square is less than 1, and it diverges if x square is greater than 1. But if x square is equal to 1, उस पर टेस्ट मेरा फेल हो जाएगा. if x square is equal to 1, अब जब भी मेरा टेस्ट फेल होता है, you have to go back to the original series, go back to the original series, to original series. Since this is a general question, तो यहाँ पर आपको everywhere you have to check the behavior of the series. So you can't just conclude it here कि हाँ x square is equal to 1 पर फेल होगा तो बाकी आप जानो, है ना, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं. सो x square को 1 पुट करो तो अपना un क्या हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू सोन 2n माइनस 1 डिवाइड. अच्छा, जब टेस्ट फेल होगा तो क्या बोला था मैंने, वी विल यूज़ राबीज टेस्ट. हाँ, तो राबीज टेस्ट यूज़ करते ना, दोबारा से सेम चीज़ क्यों कर रहे हैं. सो राबीज टेस्ट एक्चुअली क्या कहता है, पहले मैं स्टेटमेंट बता देती हूँ आपको. व्हाट डज राबीज टेस्ट सेज? राबीज टेस्ट सेज दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un बाई un प्लस 1 माइनस 1. अगर ये लिमिट मेरी ग्रेटर देन 1 आती है तो कन्वर्जेस, और अगर लेस देन 1 आती है तो डाइवर्जेस. याद रखना ये उल्टा है रेशियो टेस्ट का. सो यहाँ पर भी un बाई un प्लस 1 यूज़ होगा. सो हमने जो फाइंड किया था un प्लस 1 बाई un, वो क्या आया था, लुक एट इट, ये. सो ये आया था मेरे पास 2n प्लस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वेयर. सो व्हेन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो आपको राबीज टेस्ट यूज़ करना होगा. तो व्हेन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, सो व्हाट इज un बाई un प्लस 1, un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू 2n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 होल स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर तो क्योंकि 1 हो चुका है ना. तो नाउ बाई राबीज टेस्ट इफ़ आई सी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1, तो इट इज़ 4n स्क्वेयर, and 3 2s are 6 and 2 2s are 4, so it will be 10n plus 6 divided by 4n square plus 1 plus 4n. अगर मैं ये लिमिट फाइंड करती हूँ, so what will I get? This is equal to limit n tends to infinity n into 4n square plus 10n plus 6 minus 4n square minus 1 minus 4n divided by 4n square plus 1 plus 4n, है ना. देखो कैलकुलेशन आपकी फ़ास्ट होनी चाहिए, तो मुझे ये मत बोलना कि मैम आपकी कैलकुलेशन फ़ास्ट है, आपकी कैलकुलेशन मुझसे भी फ़ास्ट होनी चाहिए,
10 माइनस 4 इट इज़ 6 प्लस 5, 6n+5। और वो यार आई मीन वो सब में नहीं होती है, जैसे वो ऑटोमेटिकली आप में नहीं आएगी, बट आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो वो स्पीड अपने आप बनती जाती है। सो देयर इज़ नथिंग टू फील बैड अबाउट इट अगर आप अभी स्लो कर पा रहे हैं तो। देखो इफ़ आई टेक एन आउट तो इट विल बी 6 प्लस 5/6, 5/n, 6 + 5/n डिवाइड बाई नीचे से इफ़ आई टेक n स्क्वायर आउट 4 + 1/n स्क्वायर प्लस 4/n। लुक एट इट केयरफुली। सो ये कैंसल आउट हो गया, दिस गॉट कैंसल्ड आउट एंड लिमिट ऑफ दिस इज 6/4, दैट मीन्स इट इज़ 3/2 एंड वी नो दैट 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1। सो इसका मतलब मेरी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है बाई राबीज टेस्ट, बाई राबीज टेस्ट। और किस किस पॉइंट पर कन्वर्ज करती है, x² = 1 पर। सो क्या पता चला ओवरऑल हमें, ओवरऑल वी गॉट टू नो कि UN कन्वर्जेज इफ x² इज लेस देन टू 1 एंड डाइवर्जेज इफ x² इज ग्रेटर देन 1। दिस आई गॉट टू नो अबाउट माई सीरीज। ठीक है।